پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 189 پر درج نظم رامائن کا ایک سین پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کو پڑھیں گے، ہم پہلے نظم کی صنف سے متعلق بات کریں گے۔ نظم اس صنفی سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر شاعر اپنے افکار و تاثرات مسلسل اشعار کی صورت میں ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس اعتبار سے غزل کے علاوہ شاعری کی بیشتر اصناف مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ اور رباعی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ان قدیم کلاسیکی اصناف کی اپنی روایات، اپنے اصول اور اپنی تاریخ ہے۔ ان میں سے اکثر خاص موضوعات کے لیے مخصوص ہیں اور اپنے زمانے کے مخصوص حالات میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ موضوع سے قطع نظر حیت یعنی مصروں اور بندوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی دور قدیم میں نظم کا کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسدس، مخمس، ترجیح بند وغیرہ۔ ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے سخت تھے کہ ان میں کسی شاعر کو اصلاح یا ترمیم کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور بالعموم وہ انہی روایات اور ضابطوں کے پابند رہ کر ہی طبع آزمائی کرتے تھے۔ لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، سیاسی، سماجی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئی اور نئے خیالات عام ہوئے، تو اردو نظم کے روایتی اسالیب میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کی قدیم اصناف کے بندے تکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور مانوس یا نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ نظم کی کئی قسمیں ہیں، مثلا پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں کی ساخت مروجہ حیتوں سے مختلف ہوں یا جن کے مصروں میں قوافی کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قوافی کا کوئی نہ کوئی التزام پایا جائے، پابند نظم کہلاتی ہے۔ مثلا مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گیت وغیرہ۔ نظم معرہ ایسی نظم جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم غیر مقفع یا بے قافیہ نظم کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے آزاد نظم، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے لیکن قافیہ ضروری نہیں۔ تو پیارے بچوں، نظم کے بارے میں نے آپ سے بات کی، تو ابھی میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہوں گا، تو امید ہے کہ آپ بالکل صحیح جواب دیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ شاباش! جی ہاں، ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ تو نظم معرہ کسے کہتے ہیں؟ شاباش! نظم معرہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ تو تیسرا سوال ہے آزاد نظم کے بارے میں۔ آزاد نظم کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ آزاد نظم کس سے کہتے ہیں؟ آزاد نظم کیسے لکھی جاتی ہے؟ شاباش! ہاں بالکل، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ شاباش! تو اب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آج ہم نے جس نظم کو پڑھنا ہے وہ ہے
रामायण का एक सीन, रामचंद्र जी मां से रुखसत लेते हुए। इस नज्म के शायर हैं पंडित बृजनारायण चकबस्त। चकबस्त का असल नाम पंडित बृजनारायण और खानदानी लकब चकबस्त था। आप 1882 ईस्वी में फैजाबाद लखनऊ में पैदा हुए। तालीम तरबियत लखनऊ ही में हासिल की। 1905 ईस्वी में बीए और 1907 ईस्वी में वकालत की सनद हासिल करने के फौरन बाद आपने वकालत शुरू की और बिल आखिर 12 फरवरी 1926 ईस्वी को एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में राय बरेली गए और वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन तक आए थे, जहां पर फालिज के शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हुए। चकबस्त को बचपन से ही शायरी का शौक था। आप आतिश और अनीस के दिलदादा थे। दरअसल आपके सीने में एक दर्दमंद दिल था जो मुल्क व कौम की ज़बूं हाली से मुतासिर था। आपने गजलों के अलावा कौमी इस्लाही, तारीखी और नेचुरल नज़में भी कही हैं। चकबस्त का मजमूए कलाम सुबह वतन के नाम से शाया हो चुका है। आपने मुतअद्दिद कौमी लीडरों की वफात पर दिलगुदाज मरसिए कहे हैं। रामायण को चकबस्त ने इस खूबी के साथ नज़म किया है कि शायद ही कोई और शायर कर सके। कुदरती मनाजिर की हसीन और दिलकश पैराया में तस्वीर कशी, कलाम की खूबी और ख्यालात की पाकीज़गी उनकी शोहरत और बका की जामिन है। मुख्तसरन ये कि आपके यहाँ कदीम और जदीद रंग की आमेजिश पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे अब चंद सवालात पूछूंगा और उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा और आप बिला झिझक इन सवालात के जवाब देंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि चकबस्त का असल नाम क्या था? बिल्कुल सही, चकबस्त का असल नाम पंडित ब्रिज नारायण था और खानदानी लकब चकबस्त था। चकबस्त कहां पैदा हुए? बिल्कुल सही, चकबस्त फैजाबाद में पैदा हुए। अगला सवाल है कि चकबस्त कब पैदा हुए? शाबाश, बिल्कुल सही, चकबस्त 1882 ईस्वी में पैदा हुए। 1905 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की और 1907 ईस्वी में वकालत की डिग्री हासिल की। तो आप ये बताइए कि चकबस्त का इंतकाल कब हुआ? चकबस्त का इंतकाल 12 फरवरी 1926 ईस्वी को राय बरेली में हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस नज़म को पढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस नज़म का पस मंजर क्या है। रामचंद्र जी कौन थे? सीता जी कौन थी? रानी कैकी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और राजा दशरथ कौन थे? रामचंद्र जी के वनवास पर निकलते वक्त उसकी मां रानी कौशल्या और सीता जी क्यों बिलक बिलक कर रोती हैं? तो ये सब जानने के लिए जरूरी है कि हम तारीख के अवराक को पलटें। प्यारे बच्चों, इस नज़म से पहले भी मैंने एक ऐसी ही नज़म 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जिसका उन्वान था सीता जी की आहुजारी, और उस नज़म को सरूर जहान आबादी ने लिखा है। उस नज़म के आगाज में भी हमने इस वाक़ा के पस मंजर के बारे में बात की थी कि आखिर रामचंद्र जी को क्यों 14 साल तक जंगलों में रहने के लिए जाना पड़ा। प्यारे बच्चों, तारीख के मुताबिक रामचंद्र जी हिंदू देवताओं में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाला देवता है, जिसको सच्चाई और बहादुरी का मुजस्समा तस्वुर किया जाता है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक शुमाली हिंद की एक रियासत अयोध्या पर सूर्यवंश खानदान का एक राजा दशरथ राज कर रहा था। राजा दशरथ की 3 बीवियां थीं, जिनके नाम रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकी। इन तीनों बीवियों से राजा के 4 बेटे और 1 बेटी थी। बेटों के नाम रामचंद्र जी, भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जबकि बेटी का नाम शांता था। बेटों में से 2 जुड़वा थे, भरत और लक्ष्मण, जो रानी केकी के बेटे थे। रामचंद्र जी की मां रानी कौशल्या थी और सुमित्रा के बतन से शत्रुघ्न और एक बेटी शांता पैदा हुई थी। रामचंद्र जी अपनी दिलेरी, बहादुरी, नेक औसाफ और नेक दिली के सबब अवाम में बहुत मकबूल थे। उनकी शादी मथलापुरी, जो कि मौजूदा नेपाल का एक हिस्सा है और जिसे आज जनकपुर के नाम से भी जाना जाता है, के राजा जनक की बेटी सीता से हुई थी। राजा दशरथ की छोटी रानी केकी ने किसी जंग में राजा की जान बचाई थी, जिस पर राजा ने उनसे यह वादा किया था कि वो कभी भी उनकी कोई भी मुंह मांगी मुराद पूरी करेगा। यानी कि किसी जंग में राजा जब खतरे में पड़ गए थे तो रानी केकी ने उनकी जान बचाई किसी तरह। तो राजा ने उनसे खुश होकर उनसे यह कहा था कि किसी भी वक्त वो उनकी एक मुंह मांगी मुराद पूरी करेगा। राजा दशरथ के सभी औलाद यानी शत्रुघ्न, शांता, भरत और लक्ष्मण रामचंद्र जी से बेहद प्यार करते थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रामचंद्र जी तबीयतन निहायत ही शरीफ और नेक थे। वो एक धार्मिक किस्म के आदमी थे, यानी वो ज्यादातर इबादत में मशगूल रहते थे। और राजा दशरथ भी रामचंद्र जी से बहुत प्यार करते थे। अयोध्या के लोग राजा दशरथ की बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। राजा के बाद जिस शख्स को अयोध्या के लोग सबसे ज्यादा चाहते थे वो थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी जवान हो गए, उधर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जवान हो गए। अब राजा दशरथ के सामने ये मसला पेश आया कि अपना जानशीन किसको मुकर्रर करेगा। तो उन्होंने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया कि वो रामचंद्र जी को तख्त पर बिठाएगा। मगर दूसरी जानिब राजा की दूसरी बीवी रानी केकी ताक में बैठी थी, क्योंकि वो एक चालाक किस्म की औरत थी। इसलिए उसने मौका को गनीमत जानकर राजा को अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और उससे ये मुराद मांगी कि रामचंद्र जी के बदले उसके बेटे यानी भरत को तख्त पर बिठाया जाए और राम को 14 साल तक के लिए जंगल में तपस्या के लिए भेजा जाए, यानी इबादत के लिए भेजा जाए, वनवास के लिए भेजा जाए। राजा रानी की हकीकी ये मुराद सुनकर सख्ते में आ गया, मगर चूंकि वो अपने वचन के पक्के थे इसलिए उसने रामचंद्र जी से ये सारा माजरा सुनाया। मगर राम भी एक वफादार, सादतमंद, नेक दिल और नेक सिफत बेटा था, इसलिए उसने अपना सरे तस्लीम खम किया और वनवास के लिए तैयार हो गया और 14 साल के लिए जुनूबी हिंदुस्तान के जंगलों में चला गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये समझ गए होंगे कि राम के वनवास जाने का ये वाक़ा किस तरह पेश आया और उस वक्त जब राम को घर से निकलने का वक्त आया तो उस वक्त किस किस्म के मनाजिर उनके घर में देखने को मिले, उसे मुख्तलिफ शायरों ने अपने अपने अंदाज में अशार का जामा पहनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 8वीं जमात में ऐसा ही एक मंजर पढ़ा होगा जिसमें राम की रुखसती के वक्त सीता जी की आहुजारी को दिखाया गया है और उस नज़म के शायर हैं सरूर जहान आबादी। और आज इस नज़म में भी राम की रुखसती का ही मंजर दिखाया गया है, मगर इसमें सीता जी को नहीं बल्कि रामचंद्र जी की प्यारी मां रानी कौशल्या की आहुजारी अशार में पेश की गई। इस नज़म का उन्वान है रामायण का एक सीन, रामचंद्र जी मां से रुखसत लेते हुए। और इस नज़म के शायर हैं पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त लखनवी। मैं आपके सामने इस नज़म को पढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस नज़म को गौर से सुनेंगे,